Today we are going to talk about the clinical features of the acute rheumatic fever. So इसमें बेसिकली हम लोग पहले देखेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल इंसिडेंस ऑफ एक्यूट rheumatic fever एंड देन हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एक्यूट rheumatic fever. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल इंसिडेंस ऑफ एक्यूट rheumatic fever. So first is clinical incidence. So clinical incidence का अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज द एज. सेकेंड वन इज जेंडर. थर्ड वन इज environmental factor. सो क्लिनिकल इंसिडेंस का बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज एज. जब हम लोग एज का बात करते हैं तो एक्यूट rheumatic fever इज मोर कॉमन इन 5 to 15 years of age. When we talk about the gender, it is more common in female as compared to male. When we talk about the environmental factor, there are certain environmental factors that is associated with the acute rheumatic fever, like overcrowding, voice irritation, winter and spring season, poverty. So this is basically the some environmental factor which is associated with acute rheumatic fever. So this is all about the incidence. First is the age, more common in 5 to 15 years of age. Gender, more common in female. And when we talk about environmental factor, overcrowding, poor sanitation, winter and spring season poverty is closely associated with the acute rheumatic fever. Now after that, next is the clinical features of acute rheumatic fever. So clinical features of the acute rheumatic fever is basically divided into two. First is the major clinical features and second is the minor clinical feature. तो हम लोग देखते हैं क्या है मेजर क्लिनिकल फीचर और क्या है माइनर क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्यूट rheumatic fever. So क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज द मेजर. क्लिनिकल फीचर्स एंड सेकेंड वन इज द माइनर क्लिनिकल फीचर. So clinical feature is divided into two groups. First is the major clinical feature and second one is minor clinical feature. अगर मेजर क्लिनिकल फीचर का बात करते हैं तो इसमें 5 क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज द आर्थराइटिस, सेकेंड वन इज कार्डाइटिस, थर्ड वन इज सीडेनम, पोडिया, एरिथेमा मार्जिनेटा, and the last one is subcutaneous nodule. So when we talk about the major criteria,
और मेजर क्लिनिकल फीचर, देयर आर 5 मेजर क्लिनिकल फीचर. फर्स्ट इज आर्थराइटिस, सेकंड वन इज कार्डाइटिस, थर्ड वन इज द Sydenham's chorea or simple, it is also called chorea, and the fourth one is the erythema marginatum, and the fifth one is the subcutaneous nodule. Now when we talk about the minor clinical features, so there are basically first minor clinical feature is fever. Second one is arthralgia. Third one is pallor. Fourth one is anorexia. Fifth one is weakness. Sixth one is weight loss. Seventh one is fatigue, and eighth one is lethargy. So basically there are 8 minor clinical features. First is fever, second is arthralgia, third one is pallor, fourth one is anorexia, fifth one is weakness, sixth one is weight loss, seventh one is fatigue, and eighth one is lethargy. अब हम लोग बात करते हैं इस आर्थराइटिस के बारे में. सो बेसिकली एक्यूट रिमेटिक फीवर में जो आर्थराइटिस अराइजेस होता है, जो आर्थराइटिस अकर होता है, वो फ्लीटिंग माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस रहता है. फ्लीटिंग माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मीन्स व्हाट? इट इज माइग्रेटेड फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट. मतलब कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक वो आर्थराइटिस जो रहेगा वो माइग्रेट करेगा, एक जॉइंट तक लोकलाइज नहीं रहेगा. तो इसमें जो आर्थराइटिस बेसिकली होता है वो किस टाइप का आर्थराइटिस होता है? फ्लीटिंग माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस. और ये फ्लीटिंग माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस जो रहता है वो इन्वॉल्व करता है मेजर जॉइंट्स को, लाइक द एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. ये मेजर जॉइंट को इन्वॉल्व करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट फीचर्स ऑफ द एक्यूट रिमेटिक फीवर. जो भी एक्यूट रिमेटिक फीवर का पेशेंट आता है 80% पेशेंट में ये आर्थराइटिस पाया जाता है. मतलब इट इज एसोसिएटेड विद द 80% केसेस ऑफ द एक्यूट रिमेटिक फीवर. नाउ सेकेंड वन इज द कार्डाइटिस. जब कार्डाइटिस की हम लोग बात करते हैं तो किस टाइप का कार्डाइटिस एक्यूट रिमेटिक फीवर में राइजेस होता है? तो एक्यूट रिमेटिक फीवर में बेसिकली पैन कार्डाइटिस अगर होता है. और ये पैन कार्डाइटिस मीन्स व्हाट? इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटायर हार्ट. इंटायर हार्ट का इन्फ्लामेशन हो जाता है. तो ये पैन कार्डाइटिस के फॉर्म में ये कार्डाइटिस अराइजेस होता है. अब क्या होता है कि इसमें हम लोग इनिशियल फेज और लेट फेज में एक क्लिनिकल क्या करते हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देते हैं इस पैन कार्डाइटिस का. मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल फेज में इस पैन कार्डाइटिस को रिप्रेजेंट करते हैं वाल्वुलाइटिस से, और क्रोनिक फेज में और लेट फेज में इस पैन कार्डाइटिस को करेक्टराइज हम लोग किससे करते हैं? तो पैन कार्डाइटिस को हम लोग करेक्टराइज करते हैं फिश माउथ वाल्व से. मतलब कि एक्यूट फेज में क्या होगा कि वाल्वुलाइटिस होगा, लेकिन क्रोनिक फेज और लेट फेज में जाकर के क्या होगा? फिश माउथ वाल्व का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये कार्डाइटिस में होगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज द पैन कार्डाइटिस. और इनिशियल कंडीशन में हम लोग कैसे सिग्निफाई करते हैं उसको? तो इनिशियल कंडीशन में वाल्वुलाइटिस मिलेगा और लेटर कंडीशन में क्या मिलेगा? फिश माउथ वाल्व मिलेगा. उसके बाद क्या होता है कि ये पैन कार्डाइटिस, और सिंपली अगर हम कार्डाइटिस बात करें तो ये कार्डाइटिस जो रहता है वो ओनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्यूट रिमेटिक फीवर का, डैट कॉज द परमानेंट डैमेज टू द ऑर्गन. मतलब कि अगर एक्यूट रिमेटिक फीवर किसी पेशेंट में हुआ तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट उसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना? सिडेनम कोरिया मतलब सीएनएस का प्रॉब्लम उसका करेक्ट हो जाएगा. इराइथेमा मार्टिनेटम, सबक्यूटेनियस नीडल, ये सब करेक्ट हो जाएगा. लेकिन कार्डाइटिस एक ऐसा क्लिनिकल फीचर्स है कि मैक्सिमम केस में ये देखा जाता है कि एक्यूट रिमेटिक फीवर तो करेक्ट हो गया पेशेंट का, लेकिन ये कार्डाइटिस की वजह से परमानेंट डैमेज टू द हार्ट हो गया. तो हार्ट में कुछ ऐसा वाल्व में डैमेज हो गया, जैसे कि वाल्वुलाइटिस की वजह से माइट्रल वाल्व में डैमेज हो गया. तो यही एक ऐसा क्लिनिकल फीचर्स है कार्डाइटिस जो काउज कर देता है परमानेंट डैमेज टू द ऑर्गन.
नाउ कार्डाइटिस जो रहता है वो 50% केसेस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर में देखा जाता है, मतलब कि 50% केसेस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर इज एसोसिएटेड विद दिस कार्डाइटिस। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द सिडेनम कोरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिया भी सिंपली बोल सकते हैं। इस सिडेनम कोरिया में बेसिकली क्या हो जाता है कि सिडेनम कोरिया जो रहता है वो 5 से 10% केसेस ऑफ द एक्यूट रिमेटिक फीवर से एसोसिएटेड रहता है। ये कितने परसेंट केसेस से एसोसिएटेड रहता है? 5 to 10% ऑफ द केसेस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर से एसोसिएटेड रहता है। अब ये इस सिडेनम कोरिया में क्या होता है कि सिडेनम कोरिया को क्लिनिकली हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कुछ क्लिनिकल साइंस से। अब ये सिडेनम कोरिया को क्लिनिकली कैरेक्टराइज करते हैं कुछ क्लिनिकल साइंस है, ठीक है ना। मतलब कि ये क्लिनिकल साइंस अगर पाया गया किसी भी एक्यूट रिमेटिक फीवर वाले पेशेंट में तो हम बोलेंगे उसमें सिडेनम कोरिया। वो क्लिनिकल साइंस क्या क्या हो जाता है? तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन इज प्रोनेटर साइन। सेकेंड क्लिनिकल साइन इज जैक इन द बॉक्स sign, and third clinical sign is milking. Milking of hand. So this is the 3 clinical sign which is associated with what? Which is associated with the acute rheumatic fever. First is the pronator sign, jack in the box sign, and milking sign of hand. सो ये क्या होता है कि अगर ये तीनों साइन किसी भी पेशेंट में एक्यूट रिमेटिक फीवर वाले पेशेंट में पाया गया तो हम लोग बोलेंगे उसे वो पेशेंट क्या है, सिडेनम कोरिया रिसेप्टर। और ये 5 to 10% केसेस से एसोसिएटेड रहता है एक्यूट रिमेटिक फीवर। ग्लाइटेमा मार्जिनेटम सबसे कम केस ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर के साथ एसोसिएटेड रहता है, लेस देन 5% केसेस, लेस देन 5% केसेस के साथ एसोसिएटेड रहता है। अब इसमें एक लीजन का फॉर्मेशन होता है, वो लीजन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक? सो इसमें ग्लाइटेमा मार्जिनेटम में एक लीजन फॉर्मेशन होता है जो लीजन की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है? ये एक यूनिक ट्रांजिएंट तो ये लीजन जो ग्लाइटेमा मार्जिनेटम में फॉर्म होता है वो कैसा रहता है? यूनिक ट्रांजिएंट सर्पिजियस लीजन, जिसका सेंटर कैसा रहता है? पेल सेंटर रहता है और रेड इरेगुलर मार्जिन रहता है, ठीक है ना, इस तरह का रहता है। ये इस तरह से जैसे हम बात करते हैं इस तरह से रेड इरेगुलर मार्जिन हो गया एंड सेंटर ऑफ द लीजन इज पेल। ये सेंटर कैसा रहेगा? पेल सेंटर रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ लीजन इज बेसिकली सीन इन ग्लाइटेमा मार्जिनेटम। लास्ट वन इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल। 10% केसेस ऑफ द acute rheumatic fever is associated with subcutaneous nodule. तो इट इज एसोसिएटेड इन 10% केसेस और 10% केसेस में ये देखा जाता है। अब ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल को हम कैरेक्टराइज करते हैं क्लिनिकली 3P से। ये क्या है 3P? सबक्यूटेनियस नोड्यूल को हम कैरेक्टराइज करते हैं 3P से। 3P, ये 3P क्या है? 1P means painless, second P means P-shaped, and third P means palpable.
It means it is a painless P-shaped palpable nodule, and this nodule is most commonly seen on bony prominence and tendon. इसका साइड क्या हो गया? bony prominence and tendon. और ये किस तरह का लीजन इसमें होता है? पेनलेस पी शेप पाल्पेबल नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो बेसिकली कहाँ दिखता है? बोनी प्रोमिनेंस और टेंडोन पर दिखता है। अच्छा, ये इराइथेमा मार्जिनेटम का क्या हो जाता है साइड? तो इराइथेमा मार्जिनेटम बेसिकली ट्रंक पर, लिम्स पर, ये सब पार्ट पर क्या होता है? ज़्यादातर दिखता है। सो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल अबाउट द मेजर क्लिनिकल फीचर। आर्थराइटिस exist as a fleeting migratory, polyarthritis and carditis exist as pancarditis, Sydenham chorea exist in the form of 3 clinical signs. Erythema marginatum exists in the form of lesion which is a unique transient serpiginous lesion with a pale center and irregular radius margin, and subcutaneous nodule exists as a 3P, painless P-shaped and palpable nodule. So this is all about the major clinical features and minor clinical features of acute rheumatic fever. इसके बाद एक आता है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स में कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया दिया, जो क्लिनिकल क्राइटेरिया डिसाइड करता है वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट rheumatic fever और नॉट। तो वो क्राइटेरिया हम देते हैं क्लिनिकल क्राइटेरिया ऑफ एक्यूट rheumatic fever। एंड दोस्त क्लिनिकल क्राइटेरिया इज कॉल्ड जोन्स क्राइटेरिया। तो हम क्या देखते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जोन्स क्राइटेरिया। फर्स्ट इज अ मेजर क्राइटेरिया and second is minor criteria. So first one is major criteria and second one is minor criteria. तो ये मेजर क्राइटेरिया क्या क्या आता है? अगेन वो मेजर क्राइटेरिया 5 होता है। फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया इज आर्थराइटिस, second major criteria is carditis, third major criteria is chorea, fourth major criteria is erythema marginatum, and the fifth and the last major criteria is subcutaneous nodule. So basically ये क्या हो गया? मेजर क्राइटेरिया हो गया जोन्स का, जो डिसाइड करता है वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट rheumatic fever। माइनर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फर्स्ट माइनर क्राइटेरिया इज फीवर, second minor criteria is arthralgia, third minor criteria is lethargy, fourth minor criteria is previous history of rheumatic fever और rheumatic heart disease। मतलब पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री और rheumatic fever और rheumatic heart disease का, तो ये भी एक माइनर क्राइटेरिया है। फर्स्ट माइनर क्राइटेरिया इज फीवर, सेकेंड इज आर्थराल्जिया एंड थर्ड वन इज लेथार्जी, फोर्थ वन इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ rheumatic fever and rheumatic heart disease, and after that fourth one raised ESR
एंड पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। मतलब ब्लड जब एग्जामिनेशन करे तो देयर इज अ रेट ESR erythrocyte sedimentation rate and positive C reactive protein, and the last is prolonged PR interval. So last minor criteria is prolonged PR interval of ECG. तो ये क्या हो गया, जॉन्स क्राइटेरिया हो गया। मेजर क्राइटेरिया जिसमें आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया, एडेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल आ जाता है। माइनर क्राइटेरिया जिसमें फीवर, आर्थ्रैल्जिया, लेथार्जिक, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिमेटिक फीवर, रिमेटिक हार्ट डिजीज, रेज DSR एंड पॉजिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड प्रोलॉन्ग PR इंटरवल ऑफ ECG। तो ये क्या हो गया, हम लोग का जॉन्स क्राइटेरिया हो गया। अब इससे डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एक्यूट रिमेटिक फीवर और नॉट। तो जॉन्स ने कहा कि अगर किसी पेशेंट में क्या हो गया, फर्स्ट वन, किसी पेशेंट में ऐसे जॉन्स ने क्या कहा कि किसी भी पेशेंट में अगर टू और मोर मेजर क्राइटेरिया देखा गया है, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा किसी पेशेंट में मेजर क्राइटेरिया देखा गया, फर्स्ट वन। सेकेंड, अगर किसी पेशेंट में एक मेजर क्राइटेरिया देखा गया, एक मेजर और 2 और मोर माइनर क्राइटेरिया देखा गया, या किसी के पेशेंट में ऑल माइनर क्राइटेरिया देखा गया। मतलब एक पेशेंट आया, कंसीडर कर लेते एक पेशेंट हम लोग क्लिनिक में विजिट किया, उसमें 2 और 2 से ज़्यादा मेजर क्राइटेरिया जॉन्स का पॉजिटिव है। दूसरा पेशेंट आया, उसमें एक मेजर क्राइटेरिया जॉन्स का पॉजिटिव है और 2 और 2 से ज़्यादा माइनर क्राइटेरिया जॉन्स का पॉजिटिव है। एक थर्ड पेशेंट आया, उसमें क्या हुआ, ऑल माइनर क्राइटेरिया जो जॉन्स का है वो पॉजिटिव है। तो इन तीनों केस में पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रिमेटिक फीवर। तो ये तीनों केस में क्या होगा, इन तीनों केसेस में पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रिमेटिक फीवर। पेशेंट एक्यूट रिमेटिक फीवर से सफरिंग करेगा। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द जॉन्स क्राइटेरिया और दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर। थैंक यू।